Yes, I was teaching you Mother's Day, and Doris and Cyril are in the house, and they are very upset to see the nature, to see the changed nature of their mother. Both are in tension, and mother has announced that she will keep off 2 days. She will do no work on the weekend. Okay, so the children are very much disturbed with the decision of their mother. Okay, now Doris, oh, this is awful, this is very terrible. She begins to cry, not passionately. She was crying, but not so much bitterly. Miss Pearson coldly stopped blubbering. Okay, don't pretend like this. बहाने मत करो. Don't make excuses. You are not a baby. तुम कोई बच्ची नहीं हो अब, बड़ी हो चुकी हो. If you are old enough to go out with Charlie Spencer, if you are grown up, okay, you have grown up to go out with Charlie. अगर तुम चार्ली के साथ बाहर जाने के लिए बड़ी हो चुकी हो, तो you are old enough to behave properly. So learn to behave properly with everyone. जब तुम चार्ली के साथ बाहर घूमने जा रही हो, तो तुम समझदार हो चुकी हो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करो. Now stop it. Now stop crying. George Pearson enters left. Now it is the entry of George Pearson. And who is George Pearson? Husband of Mrs. Pearson. Now George Pearson enters. George, husband of Mrs. Pearson. Okay, yes, enters left. He is about 50. वो करीबन 50 साल के हैं. Fundamentally decent. Really, he is a very decent man. Decent means he is a very good natured person. Okay, he wears decent clothes also. He has a decent personality also. Pearson, but Solomon, but quite serious. Husband is quite serious, sincere, self-important. He knows, or you can say he is egoistic. Okay, he knows his importance. Yes, pompous, थोड़े से भारी, heavy. Preferably, he should be a heavy, है ना? थोड़े से भारी ऐसे होते हैं. जब फादर जो थोड़े से भारी होते हैं बॉडी से. Slow moving type. Okay, but he is quite slow. He is not so much an active person. He is quite slow. He notices Doris' tears. Now he notices the tears in the eyes of his daughter Doris. समझ आया आपको कि फादर अंदर आते हैं और जो वो देखते हैं कि उनकी बेटी डॉरिस की आंखों में आंसू हैं. ओके, एंड फादर गेट्स वरीड. को चिंता हो जाती है. वाई हिज डॉटर इज क्राइंग, कि उनकी बेटी क्यों रो रही है. जॉर्ज, हेलो, व्हाट इज दिस? क्या सब ये? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट. ओके, व्हाट इज द मैटर? व्हाई आर यू क्राइंग? डॉरिस थ्रू सॉफ्ट अपनी सिस्कियां. बेटे अनम्यूट योर फोन. सॉरी, म्यूट योर फोन. म्यूट योर फोन. म्यूट योर फोन बेटा. यस, या यू विल सी. पापा जरा देखो ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा. Doris runs out left with a soap or two on the way. Now Doris वहां से भाग जाती है सिस्कियां भरती हुई. Like that. इस तरीके से रोती हुई वहां से चली जाती है. Okay then. Yes, very nice. George stares after her a moment. George is shocked.
why his daughter runs away with tears, कि बच्ची रोती हुई क्यों भाग गई. Then looks at Mrs. Pearson and then he looks at his wife. George, did she say you will see? क्या कहा उसने? You will see, तुम समझ जाओगे. Mrs. Pearson, yes. George, what did she mean? क्या मतलब है उसका? Better ask her. अरे दोस्ती क्या पूछ रहे हो? Why are you asking me? Go and ask her. जाओ और उससे पूछो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. मुझसे पूछ रहे हैं. George looks slowly again at the door and that Mrs. Pearson. George slowly looks at the door. फर्स्ट दरवाजे को देखते हैं, जहां से डॉरी से चली जाती है रोती हुई, फिर अपनी वाइफ को देखते हैं. व्हाट इज द मैटर? क्या हो गया ये? किसने किसको क्या कह दिया? चलिए. Then he notices that the stout. Then he notices the stout. He notices the wine. That Miss Pearson raises her another sip. Mrs. Pearson raises the glass to have a sip of wine. His eyes almost bulged. Now, husband was quite shocked. You are taking wine. His eyes got widened with surprise. आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, खुल जाती हैं. George, stout? Miss Pearson, yes. George, amazed, surprised. What are you drinking stout for? तुम क्यों शराब पी रही हो? किसके लिए पी रही हो? Because I fancied it. I fancied some. Because it was my mood. I like it. So I am drinking at this time of the day. इस समय पी रही हो? Yes. What is wrong with it at this time of the day? क्यों? What is the wrong? What is the wrong at the time of this day? क्यों? इस तरह पीने में क्या गलत है? What is the wrong? कुछ गलत नहीं है. George, bewildered, surprised. Nothing. नहीं, कुछ नहीं. I suppose I am just telling Annie नाम है Mrs. Pearson, Mrs. Annie Pearson. But I have never seen you do it before. But I have never seen you do it before. Means I have never seen you taking wine before earlier. मैंने तुम्हें तो पहले कभी इस तरीके से इस पोजीशन में नहीं देखा, शराब पीते हुए नहीं देखा. अब कैसे? Mrs. Pearson, well, you are seeing me now. और क्या पहले नहीं देखा तो अब देख लो क्या जा रहा है. George, with heavy distaste, थोड़ी सी कड़वाहट के साथ, yes, and I don't like it. ये मुझे पसंद नहीं है. I don't like it that all the children are at home and you are having wine. और तुम वाइन ले रही हो. It does not look right, Mrs. Pearson. It does not look right. ये अच्छा नहीं लग रहा है. It is not good. I am surprised at you. I am very much surprised to see your behavior. मुझे तुम्हारा व्यवहार देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है. Miss Pearson, well, ठीक, that ought to be a nice change for you. Oh, it is a nice change for you. Okay, you are seeing me some changes in me. आप मुझ में कुछ changes देख रहे हैं, and this change is quite good. George, what do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? George, Mrs. Pearson, it must be some time since you were surprised at me. It must be some time. थोड़ा तो समय तुमने लिया ही है. Since you were surprised to see me, you were surprised, you were shocked. You were shocked to see me with a wine in my hand. You must be surprised for some time. George, I don't like surprises. अरे मुझे जो surprises अच्छे नहीं लगते. मुझे surprises अच्छे नहीं लगते हैं.
I'm all for a steady going on. I want only a normal life. I want a very normal going life. मुझे आराम से चलता हुआ जीवन अच्छा लगता है. Okay, I want only simple life, not such type of life as you are showing to me. ऐसा नहीं जैसे जो तुम मुझे दिखा रही हो. Okay, you ought to know that by this time. अब तुम्हें ये जान लेना चाहिए. You must know about it. That I don't like such type of scene in the house, and I don't like such type of your behavior in the house. You must know it. By the way, I forgot to tell you this morning. अरे मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया था. हस्बैंड कह रहा है मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया था. क्या? I would not want any tea. मुझे चाय नहीं पीनी इस समय. I don't want any tea at this time. स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट. आज क्लब में जा रहा हूं ना मैं, और रात में वहां पर स्नूकर का मैच है. वहां जाकर मैच खेलूंगा. एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग. और लगता है मैं वहां पर खाना खा के आऊंगा. सो डोंट प्रिपेयर फूड फॉर मी. तो मेरे लिए खाना मत बनाना. सो नो टी. इसलिए देयरफॉर आई एम नॉट हैविंग टी एट दिस टाइम. वैसे मैं चाय भी नहीं लूंगा. This person, that's all right. ठीक है. There is not any. चाय है भी नहीं. तुम चाय पियोगे नहीं. चाय मैंने बनाई नहीं. क्या पियोगे तुम? Oh, George, astonished. You mean you did not get any ready? मतलब you have not prepared anything? तुमने कुछ तैयारी नहीं करा. तुमने कुछ नहीं बनाया. चलो चाय नहीं पीनी और कुछ तो मैं ले सकता हूं. This person, yes, and a good thing too. It is turned out. Okay, एक चीज बताऊं. It is turned out. अब थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा कुछ बदला हुआ माहौल सा है. जॉर्ज एग्रीव्ड. That's all very well. ठीक है, वो सब कुछ तो ठीक है. बट सपोज आई वॉन्टेड सम. लेकिन जरा कल्पना करो मुझे चाय चाहिए होती तो. वो तो मैंने चाय को मना कर दिया कि आई डोंट वांट टी एट दिस टाइम. बट सपोज इफ आई वांट टी एट दिस टाइम, देन तब क्या होता? दिस पर्सन, माय गुडनेस, हे भगवान, ओ लॉर्ड, लिसन टू द मैन. इस आदमी की बात तो सुनो. जरा इस आदमी की बात तो सुनो. Annoyed, नाराज. because क्योंकि I don't get tea for him. because I have not prepared tea for him. मैंने सिर्फ चाय नहीं बनाई और चाय पीना भी नहीं चाहता. and he does not even want. और उसे चाय चाहिए भी नहीं. even tried that at the club. okay, और yeah, he is going to club. he will try there to have the tea and supper. tried what at the club. क्यों क्लब में क्या करूंगा मैं? कोशिश करूंगा मैं. इस पर्सन गोइंग अप टू द बार. बार में जाना. टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर. और उनसे कहना यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर. तुम्हें एक ग्लास बियर नहीं चाहिए. बट यू आर एनॉयड. लेकिन तुम नाराज होना. बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट. क्योंकि उन्होंने पहले से ही तुम्हारी ग्लास में बियर डाल के नहीं रखी है. क्या है? जब तुम क्लब में जाओगे, क्लब में बार होता है जहां पर वाइन वगैरह होती है, तो उनसे ये कहना यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, कि तुम्हें बियर नहीं पीनी है. और फिर उससे नाराज हो जाना. क्यों? कि तुमने पहले से मेरी ग्लास में बियर क्यों नहीं डाली. तो जब तुम्हें पीनी ही नहीं है तो नाराजगी किस बात की? जब तुम्हें चाय पीनी ही नहीं है और मैंने चाय बनाई नहीं, तो नाराजगी किस बात की? व्हाई आर यू एनॉयड? ट्राई दैट ऑन देम. ये सब जो हथियार है ना तुम्हारे, ये जो बातें जब बना रहे हो, ये अपना जो ट्रिक है औरों पर आजमाना, मुझ पर नहीं. एंड सी व्हाट यू गेट. और देखना तुम्हें क्या मिलता है. जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट.
समझ नहीं आता मुझे पियर्सन। एनी, तुम किस बारे में बात कर रही हो? और द टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन इज पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन डू नाउ। अरे तो तुम क्लब में जाते हो ना, व्हेन यू गो टू क्लब, ऑल द पीपल वुड लाफ एट यू, सब लोग तुम पर हंसते हैं। दे लाफ एट यू मोर, तो तुम पर अधिक हंसते जाते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ फ्री नेचर, तुम्हारी मूर्खता के कारण। जॉर्ज इंडिग्नेंटली, गुस्से में घृणा से, लाफ एट मी, मुझ पर हंसते हैं। दे डोंट लाफ एट मी, मुझ पर कोई नहीं हंसता, वे मुझ पर नहीं हंसते हैं। दे डोंट मेक फन ऑफ मी, वे मेरा मजाक नहीं बनाते हैं। इस पे ऑफ कोर्स दे डू, अरे मुझे मालूम है बनाते हैं। ऑफ कोर्स दे मेक फन ऑफ यू, वो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड आउट बाय दिस टाइम, कोई बात नहीं, तुम्हें अब मालूम चल जाएगा। तुम शाम को क्लब जाओगे तो सी द पीपल एंड नोटिस द पीपल दैट दे वुड मेक फन ऑफ यू, वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। दे वुड लाफ एट यू, वो तुम पर हंसेंगे। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, तुम पर तो कोई भी हंस सकता है, तुम तो हो मूर्ख। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, अरे यू आर जस्ट लाइक अ जोक फॉर देम, तुम तो उनके लिए हंसने का कारण हो। वो तुम्हें एक जोकर समझते हैं, इसलिए तुम पर हंसते हैं। दे टेक यू एज ए जोकर, दे ट्रीट यू एज ए जोकर एंड दे लाफ एट यू, वो तुम्हें जोकर के समान समझते हैं और तुम पर हंसते हैं। दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहकर पुकारते हैं, तुम्हें चिढ़ाते हैं। बिकॉज दे थिंक, वो सोचते हैं, यू आर सो स्लो, यू आर सो लेजी, यू आर सो लेजी, तुम बड़े ढीले ढाले से हो। ओके, एंड पॉम्पोस, और भारी से, बेवकूफ से। जॉर्ज हॉरिफाइड, घबराते हुए, नेवर, ऐसा कभी नहीं है। दिस पर्सन, इट इज ऑलवेज beaten me when you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. It means it is always beaten me, मुझे हमेशा मालूम चल जाता है that why you should want to spend so much time at a place, कि तुम एक ऐसे स्थान पर अपना ज्यादा समय क्यों बिताना चाहते हो। I know why you want to spend your much time at that place, उस स्थान पर where they are always laughing at you, जहां लोग तुम पर हंसते हैं। Behind your back, जब तुम वहां से चले जाते हो ना, अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद क्लब से, तो लोग तुम्हारे पीछे हंसते हैं, चला गया बेवकूफ, चला गया, इस तरीके से हंसते हैं। और कॉलिंग यू नेम्स, और तुम्हें तरह तरह के नाम लेकर पुकारते हैं। पॉम्पस, हैवी, सिली, फैट, मोटा, स्लो, लेजी, इन नामों से तुम्हें पुकारते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम, कहते हैं अकेला क्लब में चला आता है। ही कम्स टू क्लब अलोन, he never brings his wife with him, कभी अपनी वाइफ को साथ लेकर नहीं आता है। नाइट आफ्टर नाइट, हर रात अपनी वाइफ को घर छोड़कर आता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विदाउट, सॉरी, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, उसके साथ बाहर जाने की बजाय, who does not make you like a fool, अरे when you do not take me with you to the club, so they will understand you, they will understand you, or they will treat you like a fool। भाई तुम मुझे कभी अपने साथ ले नहीं गए क्लब में, तो लोग क्या कहते हैं, ये कभी अपनी बाइक को साथ में लेकर के आता ही नहीं है, मूर्ख है। He is like a fool, मूर्ख इंसान। Cyril enters right, अब Cyril अंदर आता है with a glass of milk in one hand, he has a one glass milk in his hand and a thick slice of cake in the other, और दूसरे हाथ में एक स्लाइस केक की स्लाइस है, मोटी है, जिसको वो जो
किचन से लेकर के आया है और वो खाया क्योंकि वो भूखा है और मिसेस पियर्सन ने कुछ भी नहीं बनाया है। सो ही इज वेरी मच रेडी टू हैव ऑल दिस थिंग्स। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड। George was completely dazed, completely surprised, completely shocked. Turns to him appealingly. Now he turns to his son with request. George, here, Cyril, you have been with me to the club once or twice. अरे सिरिल, तुम भी तो मेरे साथ एक दो बार क्लब गए हो। Okay, you have also gone to club with me once or twice. They don't laugh at me. लोग मुझ पर हंसते नहीं ना। And call me Pompey Pearson. और वो मुझे इस नाम से टीज नहीं करते ना, इस नाम से परेशान नहीं करते ना। दूसरे करते हैं क्या वो? Cyril embarrassed hesitates. Cyril थोड़ा घबराते हुए थोड़ा संकोच करता है। एंग्रीली, गुस्से में, गो ऑन प्लीज, बताओ, टेल मी, बताओ दूसरे क्या वो ऐसा करते हैं? Cyril embarrassed, well, yes, dad, हाँ डैडी, वो आपको चिढ़ाते हैं। They make fun of you, आपका मजाक बनाते हैं। They call you with different names, आपको different names से बुलाते हैं। I'm afraid they do, मुझे डर है। Really, I'm sorry, they do all this, वे ये सब काम करते हैं। George slowly looks from one to other, staggered. George पहले सिरिल को, फिर अपनी वाइफ को, फिर सिरिल को, फिर वाइफ को देखता है। Staggered, थोड़ा सा लड़खड़ाता है। George slowly, धीरे से, well, I will see them, मैं देख लूंगा, damn it. George exits left slowly. George वहां से धीरे से चले जाते हैं। Almost as if somebody had hit him over the head. बिल्कुल इस तरीके से जा रहे हैं जैसे किसी ने उनके ऊपर पीछे से कुछ अटैक कर दिया हो, हिट कर दिया हो। बिल्कुल धीरे से, परेशान से, सोचते हुए what his wife is saying, why his son supporting his wife about all these comments given to him by the people in the club. चलिए, yes, Cyril, after watching him go, Cyril जब उन्हें जाते हुए देखता है, turns indignantly to Mrs. Pearson, गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखता है। Cyril, now you should not have told him that, mummy, you should not have told this to father. मैं फादर को ये सब नहीं बताना चाहिए था। You made him angry, तुमने उन्हें नाराज कर दिया। That is not fair. It is not fair. ठीक नहीं किया आपने। You have hurt his feelings, mine too. आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है, साथ में मुझे भी हर्ट कर दिया है। Miss Pearson, sometimes it does people good to have their feelings hurt. बेटा कभी कभी अच्छा होता है, लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना भी कभी कभी अच्छा होता है। Sometimes it is good to hurt the feeling of others. Can you or not? The truth ought not to hurt anybody for long. सच्चाई कभी किसी से छुपानी नहीं चाहिए और सच कभी किसी को ज्यादा देर तक परेशान नहीं करता है। अगर सच छुपाओगे तो परेशान हो जाओगे और अगर सच नहीं छुपाओगे तो परेशान नहीं होगे। If your father did not go to the club so often, अगर तुम्हारे पापा फादर अक्सर क्लब नहीं जाते हैं, they would stop laughing at him, तो लोग उन पर हंसना बंद कर देंगे। It means your father should stop to go to club quite often. If they do like this, the people stop laughing at him. तुम्हारे पिताजी को लगातार क्लब नहीं जाना चाहिए, उन्हें क्लब जाना बंद करना चाहिए ताकि लोग उन पर हंसना बंद कर दें। Getting or not? Cyril gloomily with sadness, दुख से, I doubt it.
मतलब इस पर संदेह है, शक है कि फादर विल स्टॉप गोइंग टू क्लब। मिसेस पियर्सन सीवियरली पॉसिबली यू डू, बेटा ये तुम कर सकते हो, बट वॉट आई डाउट इज, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या है, वेदर योर ओपिनियन इज वर्थ हैविंग, कि क्या तुम्हारी जो ओपिनियन है वो इम्पोर्टेंट है, क्या तुम्हारे जो आइडियाज हैं वो इम्पोर्टेंट है, कि पिताजी को ये सब नहीं कहना चाहिए था। व्हाट डू यू नो, तुम जानते क्या हो? नथिंग, तुम बेटा कुछ नहीं जानते। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेस, तुम तो पैसा लेते हो और अपना सारा समय डॉग्स की रेस में बिता देते हो। ग्रे हाउंड रेस कहते हैं बेटा, ग्रे हाउंड कहते हैं ये डॉग्स की रेस होती है। ग्रे हाउंड मीन्स यार बड़े बड़े डॉग्स होते हैं, उनकी रेस होती है ना। और उसकी माँ क्या कह रही है, मदर इज सेइंग दैट यू स्पेंड योर मनी, तुम अपना पैसा खर्च कर देते हो, एंड योर टाइम आल्सो, और अपना समय भी, ऑन द रेस ऑफ डॉग्स की रेस पर, इसे तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। एंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स आइस शोज, ओके, और तुम अपना समय गंदे रास्तों पर, ठीक है, और जहां बर्फ वगैरह होती है वहां पर खत्म कर देते हो। सिरिल शल्कली गुस्से में, वेल व्हाट इफ आई डू, तो मैं क्या करूं? आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, अरे मम्मी आई जस्ट एंजॉय माई सेल्फ विद ऑल दीज एक्टिविटीज, या बाय डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज, अरे मम्मी मैं सब ये काम करके, ये सब एक्टिविटीज करके खुद को एंजॉय करता हूं। आई एंजॉय माई लाइफ इन दिस वे। मिस पियर्सन, I would not mind so much if you are really enjoying yourself. अच्छा ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगा, I am not feeling bad. I am not feeling bad, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। If you enjoy your life like this, और आप इस तरीके से अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। But are you? And where is it getting you? इस सब तुम्हें मिलता कहां से है? There is a sharp hurried knocking heard out left, तब डोर पर एक बहुत जोरदार नॉकिंग होती है इस तरीके से। Cyril, might be for me, I will see, शायद कोई मेरे लिए आया होगा, मैं देखता हूं। Cyril hurries out left, in a moment he re-enters, hurried दरवाजे की तरफ जाता है और जल्दी दोबारा से वापस आता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, दरवाजा बंद करते हुए। इट इज दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, मिसेस फिजडेल, वो पड़ोस की रहने वाली मोटी सी बेवकूफ सी लेडी थी। कौन? मिसेस फिजडेल। कौन कहता है? सिरिल कहता है। यू डोंट वॉन्ट हर हियर डू यू, वो तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती होंगी। डू यू, तुम मुझसे मिलना चाहती हो? इस पियर्सन शार्पली, सर्टेनली आई डू, हाँ हाँ क्यों नहीं, आई वॉन्ट टू मीट हर, आस्क हर इन, उसको अंदर आ जाए। एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग आइदर, उससे सिली, उसे मूर्ख और बूढ़ी मोटी लेडी मत कहना। शी इज अ वेरी नाइस वुमेन, बड़ी अच्छी लेडी है। The lot of more sense than you will ever have. She is more sensible. She is more sensible than you. वो तुमसे अधिक समझदार है। Oh बेटा, period is over now. I am leaving the meeting.